Assalamualaikum, students of class 9. Today it is my lecture number 27. Lecture number 27. Okay. And in this lecture we will study about the ionic bonding. In the previous lecture class, lecture number 26, I have told you about the types of chemical bond. Right, there are basically two types of chemical bond: the bonding which is formed by the transfer of electron, and bonding which is formed by the sharing of electron. Okay, the bonding, right, chemical bond which forms because of the transfer of electron, and which formed by the sharing of electron. Right. The bonding which takes place by the transfer of electron, it is called as the ionic bonding, and the bonding which takes place due to the sharing of electron is called as the covalent bonding, and its subtype is the coordinate covalent bonding. Okay. So now today we will study about the ionic bonding. Okay. Ionic bonding, it is the type which takes place by the transfer of electron. The attraction that binds oppositely charged ions together is termed as the electrovalent or ionic bonding. Do you know that electrovalent bond is the second name of the ionic bonding? Okay, ionic bonding is also called as the electrovalent bonding. ठीक है ना? तो आयनिक बॉन्डिंग को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी कहते हैं क्लास. ठीक है, तो इसी का सेकंड नेम है ये. अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? यू कैन लुक एट द पेज नंबर 79. ठीक है, पेज 79 at the last line, right class? At the last line you get this definition: the attraction that binds oppositely charged ions together is termed as the electrovalent bond or ionic bond. Okay, in the previous lecture class I have given the concept of ions. ठीक है, I have explained the ions, positive ion and negative ion. Ion क्या होते हैं, ion कैसे बनते हैं, what is the difference between the atom and ion. I have explained all the things in detail. ठीक है, पूरे लेक्चर में मैंने ion को खास जो है इसको डिफाइन किया था, बताया था इसको ion कैसे फॉर्म होते हैं, एटम और ion में क्या डिफरेंस है. यू नो एटम इज द नेचुरल मटेरियल. ठीक है ना, एटम नेचुरल होता है, एंड ion इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ द एटम. एटम किसी न किसी तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो जाके आयन बनता है. एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा. इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन फॉर्म होगा. राइट क्लास? सो दैट इज द डिफरेंस. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग आई विल टेल यू. पॉजिटिव आयन ऑफ एटम इट फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, दे दिया किसी को इलेक्ट्रॉन, तो इसे मैंने पॉजिटिव आयन. नेगेटिव आयन, ठीक है, which is formed by the gain of electron. Okay class? अच्छा, then positive ion is called as the cation. Its proper name is the cation. क्या नाम है? Cation. Negative ion it is called as the anion. Right class? Anion. Cation, anion. So if I use the terms cation, anion, तो जो है इसका भी फिर आप यही मतलब रहेगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. ठीक है, दिस आर द प्रॉपर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन. ठीक है, हम पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन का वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन अगर टर्म्स यूज करनी है, सो द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव आयन दैट इज द cation, एंड द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव आयन इट इज द anion. ओके क्लास? नाउ we will move towards the ionic bonding. We will see its example देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ionic bonding क्या होती है. इसका डिफिकल्ट बहुत इजी है. Now we are taking the example of sodium chloride. ठीक है, we will see the ionic bonding in the sodium chloride. Sodium chloride. You know that sodium, its Latin name is the natrium. Natrium, N-A-T-R-I-U-M. Natrium, इसलिए sodium chloride कहलाता है ये. ठीक है. अच्छा, in the sodium chloride you know that it has the, अच्छा इसको हम इसकी देखेंगे इसका ionic bonding कैसे होती है. ionic bonding के थ्रू sodium chloride फॉर्म होता है. इसमें ionic bonding कैसे होती है. ठीक क्लास? अच्छा देखिए, सोडियम में, in the sodium there are the 11 electrons. ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम में. अच्छा, अब देखिए, अल्फा इज ड्रॉ इज स्ट्रक्चर. जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ठीक है, कैसे होगा? दैट इज द न्यूक्लियस, प्रोटॉन और 11, न्यूट्रॉन विल बी 12. ठीक है, In the first shell there are 2 electrons. In K shell
shell there are the 8 electrons, and in M shell there is only 1 electron. ठीक है, according to 20 formula, K shell 2 electron, L shell 8 electron, M shell 1 electron. In class कितने हो गए? 2 8 1 11. ये सोडियम में का एटॉमिक नंबर क्या है? 11. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. अच्छा देखिए क्लोरीन प्लस क्लोरीन, इट इज रिएक्टिंग विद द क्लोरीन. अब क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है. नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन. ठीक है, प्रोटॉन आर 17, न्यूट्रॉन विल बी 18. ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. ठीक है, इन द फर्स्ट शेल A shell there are 2 electron, L shell 8 electron, M shell there will be 7 electrons. M shell टेकिंग क्लास. ठीक है, अब क्या है? M shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के. ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन. अभी दोनों के स्ट्रक्चर सामने रखिएगा. ठीक है, अच्छा हम देखिए यहाँ पे क्या है? वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल. अच्छा डुप्लेट रूल तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम फॉलो करते हैं. ठीक है, अच्छा अब रहा ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा था कि एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो चाहते हैं स्टेबिलिटी गेन करें. हर कोई स्टेबल होना चाहता है, स्ट्रांग होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है. अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन शो करें. यहाँ पे इसमें ऑटोमोस्ट शेल में क्लोरीन की क्या सिचुएशन है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. देखिए ये पेयर फॉर्म में है, पेयर फॉर्म में है, पेयर फॉर्म में स्टेबल है, तीन पेयर. अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है इज नॉट इन द पेयर फॉर्म नहीं है ये. ठीक है, तो ये चाहेगा कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए और इसका भी पेयर बन जाए. ठीक है, राइट, तो इसका भी पेयर बन जाए. अगर पेयर बन जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा. तो ये क्या करता है? क्लोरीन विल गेट दिस इलेक्ट्रॉन, इसको अट्रैक्ट करेगा. क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को. और सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा और ये पेयर फॉर्म कर लेगा. राइट क्लास. ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसफर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया. तो आफ्टर द रिएक्शन सिचुएशन क्या होगी क्लास? देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया ना. अब ये क्या है? दिस लाइन शो द ऑर्बिट. ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑर्बिट मींस द वे ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव. वो रास्ता जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो ऑर्बिट कहलाता है. तो अब यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, ये ऑर्बिट भी खत्म हो गया. राइट क्लास, ये ऑर्बिट भी खत्म हो गया यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो गया. ऑर्बिट भी नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन चला गया. कहाँ चला गया? क्लोरीन के पास चला गया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया. अब क्या होगा आफ्टर द रिएक्शन? आप देखिए सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? सोडियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. अब सोडियम के पास Na10, सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. 2 और 8 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन. इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया. राइट क्लास, वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन फॉर्म इसको हम ऐसे लिखेंगे क्लास. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द इक्वेशन. देखिए इक्वेशन कितना सिंपल है, बहुत इजी है और इसको आपको लिख सकते हैं. 11 Na था, 11 इलेक्ट्रॉन थे, रिएक्शन हुआ, इसे इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सोडियम के पास, और इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. लॉस इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एरो शो करते हैं. ठीक है, अच्छा क्लोरीन देखिए क्लास. यहाँ पे क्लोरीन हैज गेन द इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया है. अच्छा इसको कैसे शो करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन को? विल शो दिस वे. देखिए 17 Cl राइट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन को बिफोर एरो शो करते हैं. ठीक है, याद रखिएगा बिफोर एरो गेन शो करते हैं. जैसे क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया. ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया, इसे गेन कर लिया. गेन करने के बाद क्लोरीन क्या बन गया? Cl18. राइट क्लास. ठीक है, अच्छा देखिए रिएक्शन समझ में आ गया आपको ना? अगर समझ में ना आप दोबारा रिपीट करके देखिए क्लास. ठीक है, अच्छा अब देखिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इक्वेशन. इक्वेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूं इसकी. इक्वेशन एक्सप्लेन करते हैं क्लास. ठीक है, अब ये देखें राइट, ये आपके पास इक्वेशन है. यहाँ पर दोबारा रिपीट में लिख रही हूँ मैं. सोडियम 11 Na. ठीक है, एरो सोडियम 10 प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया था ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉन पूरा उड़ के, सॉरी पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वहां से शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, क्लोरीन में आ गया था. ठीक है, तो क्या हुआ? वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया था. ठीक है, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसको हमने ऐसे शो कर दिया. कैन शो दिस वे. आप K2 यानी के शेल में 2 थे, एल शेल में 8 थे और एम शेल में 1. यहाँ पे इस सिचुएशन में. ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर एरो. ठीक है, आफ्टर एरो क्या होगा आपके पास सोडियम में? K2 L
8 L8 हो गया, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, M का तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो M शेल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो K2 L8 की ये कंडीशन आपके पास बन गई है। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेल्स, राइट। अच्छा आप देखिए इस तरह इक्वेशन बन गई आपकी। अच्छा अब यहाँ देखिए क्लोरीन की इक्वेशन, ठीक है, क्लोरीन ही इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं क्लास Cl17 प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एरो से पहले शो करते हैं हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्लास, तो यहाँ पे क्या बना आपके पास Cl18 बना, ठीक है, Cl18। अच्छा इसको कैसे शो करेंगे हम, K2 L8 M7 ये वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसको हम इक्वेशन फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो। अब यहाँ क्या होगा K2 L8 M8, राइट। इट इज द आयन, ये आयन है, ये आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इट इज द आयन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द आयन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो वी कैन शो दिस इक्वेशन इन दिस वे, राइट क्लास, सिंपल है। अच्छा देखिए अब जो है ओवरऑल इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, इसको भी बता रही थी। यहाँ पर क्या होता है, ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, मेन इक्वेशन ये वाली हो गई और ये वाली इक्वेशन हो गई, तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है। अच्छा देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, राइट। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बिफोर आफ्टर एरो है, ये इलेक्ट्रॉन बिफोर एरो, आफ्टर एरो बिफोर एरो। जब अपोजिट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, Na एटम Cl एटम, ठीक है, इसे यहाँ लिख देंगे Na प्लस Cl, Na11 Cl17 एटम, राइट, एरो, ओके। नाउ लुक एट हियर, Na पॉजिटिव, इसकी जो है ना इस ये यहाँ ले देंगे हम, राइट। अच्छा देखिए ये अब कुछ भी इक्वल नहीं है, ये सोडियम, राइट, और मतलब कोई चीज इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं हो सकती, राइट। अच्छा हमने क्या Na पॉजिटिव यहाँ लिखा प्लस Cl नेगेटिव, ये यहाँ पे लिखा हमने। अब देखिए दोनों में अट्रैक्शन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगी तो अट्रैक्शन होगी, सो वी कैन शो इन दिस वे। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, Na क्लाउड फॉर्म, क्लाउड फॉर्म मींस इट शोज अट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो रही है। तो अब में देखिएगा ऐसे भी शो किया हुआ है Na और क्लाउड फॉर्म Cl, ठीक है, तो इट इज द बॉन्डिंग। और सिंपली यू कैन राइट, जाहिर जब दोनों में अट्रैक्शन होगा तो आपस में मॉलिक्यूल फॉर्म ही कर लेंगे, तो क्या यू कैन राइट NaCl, सिंपली यू कैन राइट NaCl, right class. So it is the ionic bonding in sodium chloride, okay class. So it is simple, very easy, it's not hard. सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा आउटरमोस्ट शेल से, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आउटरमोस्ट शेल से, ठीक है। और इस तरह से इनके बीच में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और सारा ये पैटर्न जो है यूज होगा। अच्छा क्लास एक होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, होमवर्क तो खैर मैं दूंगी आपको, सॉरी अभी। अच्छा एक और चीज जो है आपके पास जो एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। यू कैन सी एट द पेज नंबर दिस वन 81, ठीक है, यू कैन सी द डायग्राम हियर, ठीक है, इसकी डायग्राम यहाँ दी हुई है, ये देखें, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अच्छा इसमें क्या है, सिंपल इतना सा डिफरेंस है, मैग्नीशियम में जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नीशियम में कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है, तो जो है यहाँ पे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वहाँ सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है क्लास। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके, और जो है ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिसकी कंफ्यूजन बनेगी 2 और 6 की बनेगी, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम के यहाँ पे ट्रांसफर होंगे इसमें। तो आपने ट्राई करना है इसको खुद से समझ के इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, ट्राई करिएगा। और अगर सपोज कोई प्रॉब्लम फील होती है, सो प्लीज इन्फॉर्म मी। अगर आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर दूंगी इसे। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे मुझे, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, आप इसको पिक कर रहे हो, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की आयनिक बॉन्डिंग और मैग्नीशियम ऑक्साइड की आयनिक बॉन्डिंग सेम पैटर्न पे है, सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, पैटर्न सेम है, जो प्रोसीजर है वो सेम है, राइट क्लास। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दोनों में हो रहा है। सो प्लीज़ ट्राई टू डू इट, कोशिश करिएगा इसको करने के लिए। अगर आपको सोडियम क्लोराइड समझ में आ गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्वियसली बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ फॉर दिस क्लास। आज के लिए जो है इतना ही है, ठीक है। तो जो है
राइट। अच्छा मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ आपको, मुझे पता है चेकिंग वीक चल रहा है, प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन देती हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही आपको। आई थिंक डिफाइन आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, एंड गिव इट, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? डिफाइन आयनिक बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। डिफाइन आयनिक बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। Okay class, so it is the question. Last question is that define ionic bonding and explain it with example of sodium chloride. इसको आपने एक्सप्लेन करना है, जैसे बुक पे लिखा है वैसे आपने करना है, बुक से पढ़िएगा, पढ़ के जो है ना इसकी डायग्राम, इक्वेशन, सब हर चीज़ लिखनी है आपने, डिटेल में इसका आंसर करना है। डेफिनेशन आपको लास्ट लाइन में मिल जाएंगी, पेज नंबर 79, लास्ट 2 लाइन्स की डेफिनेशन है जो वर्टिकल एंडर में लिखी हुई है, और नेक्स्ट पेज पे आपके पास पेज नंबर 80 है। ओके देखें, डेफिनेशन के बाद पेज नंबर 80 क्लास, ये पैरा आपने लिखना है, ये इक्वेशंस आपने लिखनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, और ये लास्ट पैरा, ठीक है, ये लास्ट पैरा भी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट टू नोट से पहले तक, यहाँ तक पूरा इसका आंसर है, ये सब आपने लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओनली 1 क्वेश्चन आई एम गिविंग इन क्लास, प्लीज डू इट, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ट्राई करेगा, ठीक है, इसके बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन बना के और इस तरह के इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बना के, इसकी डायग्राम बना के एलएम शेल की, अगर प्रॉब्लम ना हो तो इट्स ओके, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।